the world. Today we will be discussing our topic Reserve Bank of India and RBI Act. RBI Act is not very much important for those appearing for Scale 2 and 3 examination and SBI CVA examinations. Further, the sections of RBI Act are important for these people. Okay, we won't waste our time in further discussion and move towards our topic. Okay, let me erase all the things. Actually, on over the teachment there was bandwidth issue. That's why during the trial the voice was echoing much. I found that the session will have to quit. That's why I am uploading this on the YouTube. Further, what is the most important is the MCQs and practice, which is already uploaded on the over the Teachmeet, and you have to attend it and get it. What is your performance out there? Okay. Today, our discussion will be on the lecture number 1 as shared with you. The topic is RBI. We will be conducting our lectures, discussing our topic during the bank holidays, when there is a bank holiday, or Saturday and Sunday specifically. Okay, Saturday and Sunday. Saturday specifically means second and fourth Saturday. Okay, when there is a holiday, then we will be discussing our topic and going through it. Era before RBI, establishment of RBI Act, Monetary Policy Committee, functions of RBI, MCQ based on RBI, you should get it on Teachmeet classroom, and MCQ for exams is also being uploaded. Okay, currency chest I left it for the next session because it is a lengthy topic and session will be much longer than expected. Okay, we will go through era before RBI. Before we discuss this topic, we should know that what is the main function of central banks in the world. We should know that currency management is the core function at present, one of the core functions, although there are a number of things, credit flow in the economy and other things. But currency management is the core function of central banks. But you know, before the establishment of the RBI, means Act came in 1934 and established in 1935. Before 1935, who were issuing the notes? Okay, this is the our discussion point. You know that paper money in India came in late 18th century. Is that gold coins and silver coins were there? That were the main thing for the exchange in the economy. The question arises, if there was no central bank, then who were behind the issuing the bank? The Bank of Bengal. Actually, it was known as Bank of Bengal and Bihar. Here it is written as Bahar. You write it Bihar. 1773 and 1775 is a state sponsored. State sponsored means you don't think it like state government. You should say that it was having acceptance in the state, that it has the authority to issue the notes. Okay, the kings were there, the East India Company officials were there, who validated the issue of notes. There is a company named Alexander and Company, which later entered into the printing of notes. Okay, then this was based on the acceptance. Earlier to this, means earlier to RBI or any commercial bank which was not recognized all over the India, it was based on acceptance, that whether the people accept the notes issued by banks or not. Okay, the Bank of Bengal and Bihar. Okay, it was successful and profitable, but it was officially wounded up and short-lived. मीन्स ये जो बैंक था वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और इसको बंद कर दिया गया. उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान
was set up by agency house of Alexander and Company, देखो अभी बोला था, ठीक है, ये सक्सेसफुल हुआ। इट सर्वाइव्ड 3 पैनिक रन्स ऑन इट, पैनिक रन्स ऑन इट्स मतलब ऐसी कंडीशंस आ जाना कि इस बैंक को बंद करना पड़े, लेकिन तब भी ये सर्वाइव करता रहा, चलता रहा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान फाइनली वेंट अंडर व्हेन इट्स पेरेंट फर्म मिस्टर अलेक्जेंडर एंड कंपनी फेल्ड इट्स कमर्शियल क्राइसिस 1832। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाया वो 1832 में 1832 में खुद ही फेल होने लगी, ठीक है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान को भी वाइंड अप कंडीशन में जाना पड़ा। ओके। ऑफिशियल पेट्रोनेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द नोट्स इन द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, देखो अभी बोला था मैंने कि जो एक्सेप्टेंस था उसके बेस पे ही ये डिसाइड होता था ये नोट वैलिड है कि नहीं। अगर लोग उसको एक्सेप्ट करते थे, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेजरली उस समय रेवेन्यू कलेक्ट करती थी, अगर वो उस कंपनी को उसको एक्सेप्ट करती थी तो ठीक। अच्छा देखो, नोट्स क्या है, प्रोमिसरी नोट है एक तरह से, ठीक है, प्रोमिसरी नोट है। अब इसको अगर इसकी प्रॉमिसरी नोट इतनी स्ट्रांग है, किसी बंदे ने प्रॉमिसरी नोट बनवाया और वो इतना स्ट्रांग है कि आपको पैसा मिल जाएगा, तो आपको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Wide use of banknotes, however, came with the notes issue of the semi-government presidency bank. उसके बाद प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए। प्रेसिडेंसी बैंक में सेमी गवर्नमेंट बैंक थे। सेमी गवर्नमेंट मतलब एक तरह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के नॉलेज में थे। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो, अगर आपको पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी, तो आपको पता होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये सब बना करके उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। मतलब कंट्रोल ही कर लिया था, कोशिश नहीं, पूरी तरह से उसे कंट्रोल कर लिया था। बहुत सारे चार्टर एक्ट्स भी आए जिसके थ्रू भी कंपनी की पावर्स कम की गई, ठीक है। तो इसी तरह प्रेसिडेंसी बैंक्स जो आए उनको एक तरह से गवर्नमेंट का रिकॉग्निशन हासिल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो जो रियली बैंक इशूइंग नोट की तरह, मतलब करेंसी इशूइंग बैंक की तरह काम कर रहे थे, ठीक है। नोटेबली बैंक ऑफ बंगाल 1806 में 1806 एंड बैंक ऑफ कलकत्ता एज बैंक ऑफ कलकत्ता। ओके, बैंक ऑफ बंगाल एज बैंक ऑफ कलकत्ता with capital of 50 lakhs rupees, 50 lakhs rupees, sikka rupees, that is, you know that 50 lakhs rupees only. These banks were established by charters and had an intimate relationship with the government, ठीक है। चार्टर्स मतलब होते हैं रॉयल ऑर्डर्स, या ऐसे लोगों के ऑर्डर जिनको रॉयल सोसाइटी का जो भी सपोर्ट है, वो रिकॉग्निशन है, वो मिला हुआ। द चार्टर ग्रांटेड दी टू दीज बैंक्स, मतलब चार्टर को हिंदी में बोलते हैं राजपत्र। एक्चुअली राजपत्र क्या बोले, उसको गैजेट बोल सकते हैं। चार्टर इज आल्सो दैट फॉर्म ऑफ दिस चार्टर, यू नो दैट कोई एक तरह से ऑर्डर राजा की तरफ से जो निकलता है, दैट इज चार्टर। ओके, granted to these banks accorded them privilege of issuing notes for circulation within their circles। मतलब अब एक कंट्री था और उसमें कई सारे बैंक ऐसे थे जो नोट इशू करते थे। इंडिया में ही ऐसे कई सारे बैंक थे जो नोट इशू कर रहे थे, ठीक है। 1840 द सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक फाउंडेड इन बॉम्बे, देखो ये याद रखना कि सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक कब बना या बैंक ऑफ कलकत्ता कब बना। स्पेशली जो लोग पीओ का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो सीबीओ और जीबीओ वाले इसे छोड़ सकते हैं, स्केल 2-3 वाले भी इसको छोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। In this was the method, you study with yourself these things. I will share this PDF to you. Some, if there is some typing mistake, you will get that what exactly should be there. Okay.
इस तरह से कई सारे बैंक अपने अपने एरिया में नोट को इशू करते थे और ये नोट एक्सेप्टेंस के बेस पे चलते थे। हाँ, ये नोट एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें भरोसा है कि ये नोट डिफॉल्ट नहीं होगा और इसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। We can say that a number of banks were there which were issuing the notes in India when there was no central bank. Okay. इशू ऑफ कॉइन्स इन अर्ली डेज, उसके बाद आता है कॉइन्स इशू करना। अच्छा देखो, कॉइन्स तो बहुत पहले से चल रहे थे, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, लेकिन जब पेपर करेंसी के बाद जो कॉइन्स को इशू करना स्टार्ट हुआ वो, ठीक है। पहले तो आपको ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, कौन कौन सी सीरीज आई थी, कब आई थी, ये जान लेना जरूरी है। फ्रोजन सीरीज आई थी, ये 47 से 50 तक। आना सीरीज, अन्ना नहीं है ये, आना, ठीक है। आना, जो अगर आपके दादाजी होंगे, अगर किसी के, तो उन्हें पता होगा, अपने दादाजी से पूछे तो पिछले जमाने में, पुराने जमाने में आना चलता था, ठीक है। और कुछ छोटे बच्चों को आना जो है वो धागे में बांध के, जो निकले तांबे जैसा रहता था, उसे गले में भी पहना देते थे, ठीक है। आना सीरीज 15 अगस्त 1950, 15 अगस्त 1950 को स्टार्ट हुआ था। डेसिमल सीरीज तब शुरू हुआ जब 1 रुपए में 100 पैसे वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। ठीक है। इट वाज, जैसे 16 आना होते थे पहले, 16 आने होते थे 1 रुपए में, तो आना के बेस पे अब 1 रुपए में 100 पैसे होने लगे, ठीक है। तो ये डेसिमल सीरीज थी। नया पैसा और पैसा सीरीज सेम ही है, बस नया पैसा सीरीज में से नया हटा के पैसा सीरीज 1964 में कर दिया गया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी सीरीज आया उसके बाद। नित्य मुद्रा आया, कभी आप देखते हो नोट पे कभी अंगूठा बना रहता है ऐसे किसी सिक्के पे, या ऐसे दो उंगलियां बनी रहती हैं, ठीक है। तो ये नृत्य मुद्रा सीरीज है, जैसे कोई भरतनाट्यम या कुछ कर रहा हो तो उसमें नृत्य की मुद्राएं होती है ना, ठीक है, एक्शंस। तो उस पे बेस पे जो है ये करेंसी नोट्स जो है, करेंसी नोट्स नहीं, कॉइन्स जो है किए गए थे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is the central bank of currency. Central bank are relatively recent innovation. Most of central bank, as we know, they were established around early 20th century. ठीक है। अच्छा, रीजन फॉर सेंट्रल बैंक का क्या था? जब सब बैंक्स इशू कर रहे थे करेंसी, सब अच्छे से चल रहा था, तो रीजन क्या था? बहुत सारे बैंक फेल हुए, जितने स्टेब्लिश हुए लगभग सब फेल हो गए। तो उनके फेलियर के रीजन ये था कि उनका कोई सुपरविजन करने वाला नहीं था। बैंक अपने आप में ऑटोनॉमस थे, तो उसके सुपरविजन के लिए ज्यादा जरूरी था एक सेंट्रल बैंक का होना, न कि करेंसी नोट छापने के लिए। करेंसी नोट के लिए वो बैंक खुद ही करेंसी नोट छाप रहे थे, ठीक। तो मेन रीजन क्या था? रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। मतलब अगर एक बैंक है और आप उसको एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, वो 500 करोड़ के नोट छाप दिए जबकि उसके पास उतनी एसेट ही नहीं है। अब 500 करोड़ अगर उसने पब्लिक को बांटे, तो 500 करोड़ का एसेट तो उसके पास हो गया, ठीक है। लेकिन ये उसका खुद का हो गया, अब इसको कोई एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, ठीक है। बैंक इसको ऑनर करेगा या फेल होगा, या इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसके पैसे का मिसमैनेजमेंट कर दें। और यही हुआ भी, ठीक है। बस प्रिंट करते गए और सब चीजें खरीदते गए, इस वजह से बैंक फेल हुए। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या हुआ? जब म्यांमार अलग हुआ इंडिया से, पहले म्यांमार भी इंडिया में ही हुआ था, रहता करता रहता था। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब एक ही थे ना, इवन अफगानिस्तान आल्सो। In 1937, but the Reserve Bank continued to act as central bank of Burma till Japanese occupation of Burma, later up to April 1947, ठीक है। जापानीज ऑक्यूपेशन के बाद भी 1947 तक रिजर्व बैंक बर्मा का भी, म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक हुआ करता था। और पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो 1948 तक पाकिस्तान के लिए भी सेंट्रल बैंक का काम किया था। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बना और उसका ऑपरेशन हुआ, तो जो भी फंड इसका था वो ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। द बैंक एक्चुअली वाज नेशनलाइज्ड इन 1949।
Further, Reserve Bank of India 1934. Reserve Bank of India Act was set up based on recommendation of Royal Commission of Indian Currency. देखो हर जगह जॉन हिल्टन यंग रहता है, अगर रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी बोला जाए तो भी सही होगा वो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इफ क्वेश्चन दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, यस करेक्ट। हिल्टन यंग कमीशन दैट वाज known as he was the member of this royal commission, ठीक है। then you should say that it was the Hilton Young Commission. Actually, it is John Hilton Young Commission. The central office of the Reserve Bank was initially established in Calcutta, ठीक है, but was permanently moved to Mumbai in 1937. ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसको, ठीक है। सेंट्रल ऑफिस क्या होता है किसी भी बैंक का, स्पेशली सेंट्रल बैंक के लिए बात करें तो सेंट्रल ऑफिस द वेयर गवर्नर सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। व्हाट इज द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन 1 वेयर गवर्नर सिट्स और पॉलिसी आई, सेकंड वाज द सेंट्रल गवर्नमेंट, etc. Though originally privately owned, since nationalization 1949, the Reserve Bank is fully owned by Government of India. Okay, there are total 61 sections in RBI Act 1934. ये important है. First, we will see the important sections of RBI Act. Thereafter, we will see the structure, composition, and other details. Second, scheduled bank. Second schedule में है, ये important है, ये देख लेना। आउटलाइन इस्टेब्लिश इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ, ये कभी नहीं पूछा गया है। सेक्शन 4 स्पेसिफिक दैट बैंक कैपिटल विल बी 5 करोड़। जब आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था 5 करोड़ की कैपिटल के साथ, तो नो व्हाट इज द कैपिटल यू शुड नो बट नॉट दिस सेक्शन। Establishment of offices, branches and agencies, section 6, it is not important. Section 8, just you know the things, just take a view, but what is important I will tell you, read only those sections, because there are are you going to study all 61 sections? No, do not study like this. Okay, composition of board in section 8, it is not important. This is important because the same section like these things, a section is also in Banking Regulation Act, we will study later. But under section 17 it is said that it has a outline that what business RBI is authorized to conduct and what business RBI won't conduct. Means that only business RBI will conduct which comes under section 17 of RBI Act. Section 20 says that RBI has obligation to कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। मीन्स आरबीआई मना नहीं कर सकता कि हम गवर्नमेंट का बिजनेस का काम नहीं करेंगे, जैसे सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के एजेंट की तरह हम काम नहीं करेंगे, आरबीआई मना नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। सेक्शन 21, it not very important, 21 is not important, AB is 21A is important because it is works as a banker to government. You know that 20 and 21A are very similar. Section 22 is important. Means RBI has a sole right to issue bank notes and no person in India or no agency in India, even not the central government, can issue the bank notes. Okay, except one rupees note. Okay. RBI has been given explicit right to issue बैंक नोट्स। गवर्नमेंट अपने तरफ से ऐसा कोई प्रॉमिसरी नोट जैसा नहीं दे सकता जिसको पेएबल टू बियरर, ठीक है। सेक्शन 24 डिनोमिनेशन ऑफ नोट, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। 26 and 22 is not important, you read it yourself. 27 prohibits banks from issuing excessively damaged notes, this is also moderate importance। मीन्स 27 का मतलब यह है कि जो भी नोट्स लोअर डिनोमिनेशन के सर्कुलेशन में आएंगे उनको तो आपको काउंट करके रिसर्कुलेट करना ही है, और जो डैमेज्ड हैं उनको रिसर्कुलेशन में नहीं लाना है।
28 में नोट रिफंड रूल्स है, बट इट इज ऑन ग्रेस बेसिस। ग्रेस का मतलब होता है कृपा करना। ये आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो म्यूटिलेटेड नोट हैं तो उनका एक्सचेंज दे। दिस इज जस्ट a grace of RBI that you are getting exchange for your value. Section 29 under section bank notes are exempted from stamp duty. Okay. Section 31 is important. Okay. Prohibits prohibition regarding issue of notes, that is promissory notes, which is payable to bearer. मीन्स जो बियरर को पेएबल हैं, पेएबल टू बियरर, वो नोट्स जो पेएबल टू बियरर हैं, या ऐसे प्रोमिसरी नोट जो पेएबल टू बियरर हैं, वो आरबीआई के अलावा और कोई भी इशू नहीं कर सकता। करेक्ट। सेक्शन 42 is the most important out of all, that is cash reserve ratio. It is mandated that all the scheduled banks, okay, will keep the cash reserve with RBI as a current account in their current accounts held with RBI. आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। पहले देता था, अभी इसको बंद कर दिया गया बहुत पहले ही। ठीक है। सेक्शन 45 यू not one section I will say that you study yourself, section 35. ओके, सेक्शन 35 आप देख लेना। ये इट इज एज ए होमवर्क, मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता था बट नहीं किया कि आपको होमवर्क दे देता हूँ। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड अदर डिटेल्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई इज गवर्न बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेंट्रल बोर्ड में क्या होता है, ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। फुल टाइम डायरेक्टर, गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 ड्यूटी गवर्नर्स। मतलब एक तो गवर्नर हो गए और 4 ड्यूटी गवर्नर। ड्यूटी गवर्नर इससे कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा 4 रहें, बट 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। नॉमिनेटेड तो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर तो वो 10 डायरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस फील्ड गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है, एंड अदर 4 डायरेक्टर रन फ्रॉम लोकल बोर्ड्स। जो आरबीआई के 4 बोर्ड हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वहां से एक एक डायरेक्टर आते हैं, बट ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। ठीक है। ओके, द अपॉइंटमेंट इन सच पोजीशन इज फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years। अच्छा, आरबीआई में किसी भी चीज में चेंज करने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्ट लाके आरबीआई के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और किसी में भी चेंज कर सकती है। ठीक। अब आते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है जीबीओ सीबीओ एग्जाम के लिए। ठीक है, आल्सो पीओ एग्जाम्स के लिए। Monetary Policy Committee is a committee which is led by Governor of RBI, constituted by central government with the objective fixing benchmark policy rate। रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। करेक्ट। क्रिएटेड अंडर आरबीआई एक्ट 1934 टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फॉर्मेटिंग। देखो, अकाउंटेबिलिटी जैसा तो कुछ नहीं है। पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का मतलब ये है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखेंगे। ठीक है। और रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो, उसी के हिसाब से चेंज होता है। जो ऐसे पॉलिसी रेट्स हैं उनको भी आप मैनेज करेंगे। ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। कम से कम 4 लोग अगर आएंगे मीटिंग में तभी ये मीटिंग होगी। ओके। एटलीस्ट 4 पर्सन शुड बी देयर व्हेन द मीटिंग इज टू बी कंडक्टेड, दैट इज द मिनिमम quorum of members is 4. They meet at every 2 month cycle, means total 6 6 meetings are there in a year. Monetary policy report is published 2 times in a year. Although meeting is every 2 months, but monetary policy report is published only 2 times, 6 months plus 6 months period only. The board of okay, the tolerance is 4.
अभी present inflation, if it is targeted as 4%, the tolerance is plus minus 2%, means it should not go beyond 6 and should not be below 2%. Do you know that somewhat inflation is required, because if complete inflation you want to zero, then job creation will also be zero. Okay, so for developing economies, inflation is required. Little bit inflation is desirable. Board of Financial Supervision. Uh, okay, we will go through Board of Financial Supervision. When it was established, November 1994, November 1994 में, a committee of the Central Bank of Directors, Reserve Bank of India. Okay, Central Board of Directors of the Reserve Bank of India, Reserve Bank of India, the Reserve Bank of India, Board of Financial Supervision Regulations 1994. Okay. What was the aim? Improving the supervision and surveillance of financial system, providing better focus to supervisory policy. देखो ये जो काम ये कर रहा है, लगभग सेम काम ही मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का भी है, बट इसका थोड़ा है कि बीएफएस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग इंटीग्रेटेड सुपरविजन ओवर कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग। मतलब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का क्या है काम, वो केवल आरबीआई में उसकी मीटिंग होती है और वो वहीं का वहीं रहता है, उसका बाकी बैंकों के सुपरविजन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीएफएस क्या करता है, जो बैंक्स हैं, कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके भी सुपरविजन के लिए काम करता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बीएफएस टू अंडरटेक कंसोलिडेटेड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर comprising scheduled commercial bank, cooperative banks, all India financial institution, etc. Okay. BFS meeting meet once in every month. Okay. At least one is every month. अगर वो चाहें तो और भी मीटिंग कर सकते हैं। इज अप टू, जहां भी मीटिंग की बात हो रही है वो मिनिमम कोरम हो सकता है। स्कोप ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, मतलब आरबीआई का लीगल फ्रेमवर्क कहाँ कहाँ तक है, आरबीआई क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो आरबी एक्ट्स एडमिनिस्ट्रेड बाय आरबीआई, आरबीआई कौन कौन से एक्ट को मैनेज करता है। पहला तो आरबीआई एक्ट है जिसके थ्रू आरबीआई बना है। पब्लिक डेब्ट एक्ट, ये भी आरबीआई सुपरवाइज करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशंस एक्ट, ये भी आरबीआई करता है सुपरवाइज। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये भी आरबीआई सुपरवाइज करता है। फॉरेन फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये भी आरबीआई सुपरवाइज करता है। ठीक है। सरफेसी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, हु कैन बी known as the supervisor of SARFAESI Act 2002, okay, 2002, that is also RBI। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का जो रेगुलेशन है वो भी आरबीआई देखता है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम्स जो हैं वो भी आरबीआई देखता है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मॉनिटरी अथॉरिटी है, मॉनिटरी फॉर्मूलाज, मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करने की बात कर रहा है आरबीआई तो सिंपल सी बात है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए बात कर रहा है। रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है, करेक्ट है। बैंकर टू द बैंक है, करेक्ट है। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है। अच्छा देखो, प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनके लिए मतलब जो शेड्यूल्ड नहीं है, उन बैंक्स के लिए ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट नहीं है। जैसे कि अगर कोई लोकल एरिया बैंक है और वो फेल हो रहा है तो आरबीआई उसके लिए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का काम नहीं करेगा। हाँ, रूरल बैंक्स हैं जो नहीं आते आरबीआई के लिए, अगर उनके लिए भी वो उसका काम नहीं करेगा। ठीक है। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आरबीआई मैनेज करता है, लेकिन फॉरेन ट्रेड जो है डीजीएफटी करती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, डीजीएफटी और आरबीआई में डिफरेंस जान लो। ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, फॉरेन ट्रेड को मैनेज करता है। आरबीआई फॉरेन ट्रेड को मैनेज नहीं करता। इशूअर ऑफ करेंसी है, करेक्ट है। अभी सबसे पहले ही हमने पढ़ा कि आरबीआई को इशूअर ऑफ करेंसी और सुपरविजन के लिए ही लाया गया था, ज्यादातर सेंट्रल बैंक। यहाँ तक कि जो यूएसए में है ना फेडरल रिजर्व, उसको भी केवल इसलिए बनाया गया था कि वहां पर बैंक बहुत सारे फेल हो रहे थे, करेंसी इशू करने से उसका कोई मतलब नहीं था। डेवलपमेंटल रोल की बात करें
तो परफॉर्म्स वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे मास्टर सर्कुलर्स निकलते हैं ना कि क्रेडिट फ्लो देना है, लोअर स्टेटा पीपल को प्रियोरिटी सेक्टर लेंगे, तो ये सब चीजें हैं उसमें डेवलपमेंटल रोल में। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये भी हम देख चुके हैं। अदर रिलेटेड फंक्शन, तो बैंकर टू गवर्नमेंट है, बैंकर टू बैंक्स है, लेंडर ऑफ राशि सोर्ट है, तो ये सब आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो पीडीएफ लोड कर दिए, उसे आप पढ़ लीजिएगा। अदर रिलेवेंट थिंग्स क्या है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंस्टीट्यूट आरबीआई का कहाँ है, या सिडबी कहाँ है, ये पूछा गया है, या आईडीआरबीटी कहाँ पे है, तो उसके लिए है, सब इसमें ने डाल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। एक है CAFRAL, सेंटर फॉर एडवांस लर्निंग, ये भी मुंबई में है, ये आरबीआई का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इंदिरा गांधी, ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर आप में से कोई उसमें से पीएचडी या एमएससी करना चाहे तो कर सकता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो पीएचडी करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया और फॉरेन में लेक्चरर बन के चले जाते हैं, प्रोफेसर बन के। ये भी मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। IGIDR, IIBM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, ये नोएडा यूपी में है, ये छोटा सा इंस्टीट्यूट है। इसका मेन क्या काम क्या है ना, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ज्यादा कराता है, और यहाँ से आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन और कोर्सेज कर सकते हो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट अच्छा इंस्टीट्यूट है, पहले 1 ईयर का PGDBM कराता था, अभी 2 ईयर का PGDBM कराता है, ये पुणे में है, महाराष्ट्र में। उसके बाद हम आते हैं सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई में। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई इधर है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय महिला बैंक तो बंद हो गया, वैसे वो SBI के अंडर में था। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, BRB, NPML, ये प्रिंटिंग के लिए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, इफ्टास, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ओके। अच्छा, IDRBT यहाँ नहीं दिख रहा है, IDRBT भी है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंटल रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, ये हैदराबाद में है, ठीक। अब आते हैं पब्लिकेशंस। एनुअल रिपोर्ट तो 1 ईयर में एक बार आती है, वो किस लिए आती है ये आप पढ़ लेना सब। वर्किंग रिजर्व बैंक ड्यूरिंग ईयर, रिजर्व बैंक विजन, एजेंडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग, ये जब निकलता है तो इसमें दो चार चीजें रहती है, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, या ये भी पूछ सकता है कि ट्रेंड एंड प्रोग्रेशन रिपोर्ट इन बैंकिंग इज इशूड बाय आरबीआई एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो आप बता दो एनुअली। एनुअली में ये तीन, एनुअल रिपोर्ट्स में ये तीन रिपोर्ट ही इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक BSR रिपोर्ट्स, ट्रेंड एंड प्रोग्रेशन बैंकिंग एंड एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि हाफ ईयरली इशू होती है, और दैट्स ऑल, द लेक्चर इज ओवर। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग करेंसी चेस्ट। इससे ज्यादा आपको पढ़ने का आरबीआई एक्ट में जरूरत नहीं है। टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हम अभी बना रहे हैं, अभी तक 25 क्वेश्चंस ही बने हैं, इस वजह से टेस्ट लाइव नहीं है। टेस्ट में अराउंड 50 क्वेश्चंस ऑन आरबीआई आई विल पुट, and you attempt the test or teach meet, your score will be shared with you, you will get, okay. We will be closing our session for today. I hope you enjoyed this session. Thank you.